आता सांगितलं ना त्याची लिस्ट आता एवढी मोठी लिस्ट आहे डीप फ्राईड आयटम्स, शुगरी आयटम्स, ट्रान्स फॅट आयटम्स. म्हणजे उदाहरण सांगितलं ते काय सांगता येईल, वडापाव सांगता येईल आपल्याला, चिप्स सांगता येतील, तुमचे हाय शुगर मध्ये तुमचं जंक फूड येतील, त्याच्यानंतर तुमचे सो कॉल्ड ड्रिंक्स जे आहेत ते येतील, कॅफिनेटेड ड्रिंक्स आहेत ते येतील. सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ दॅट. ज्यांना कुठं लिस्ट पाहिजे ते आपल्या वेबसाईटवरून भेटू शकते. आपण गुगल जरी केलं तर ह्याच्यामध्ये सगळी लिस्ट भेटते. But when we talk about other food establishments, when they are in violation of any of the norms, you can suspend their license, right? Because that's their primary business. Schools, the meal providing part is not the primary business. So if a school is in violation, will it impact their just the canteen part, which is mostly an outsider? I think I mentioned in Marathi. Maybe I need to explain in so there are 2-3 parts. One, I have listed out who are all responsible for implementation and compliance of this. One of the part I mentioned is boards also. And the two, we have instructed as per the guidelines to the boards also, issue the instruction, you have to follow these regulations to the school. Because they are affiliated with the boards. If they don't follow, they can de-affiliate the school also. From the board side. From FDA side. Because the school has to ensure that FBO who is providing this service has to be registered with the FSI. And this overall license can yes. So without license or without registration, FBO they cannot engage. And if school itself is providing the food, then they have to register as FBO with us, right? And they have to follow the regulations while providing the food. That is second. Third is school education department has to ensure that school management implementing it. So whatever the laws application as per the school department, they will implement that also if they don't follow this one. So from all the angles, boards will take action, school department will take action, and FDA also will take action. नहीं लास्ट में क्वेश्चन आंसर होने दो, फिर बाद में बताता हूँ. प्रायव्हेटच्या खालच्या शाळा असतील, सण असेल किंवा वाढदिवस असेल किंवा शाळेचा वर्धापन दिन असेल, त्या दिवशी शाळेकडूनच काही गोष्टी दिल्या जातात. So that's what I'm saying. It's not allowed. आणि वाढदिवसाला It is not allowed. आन्सर त्याच्या योग्यच अलाउड नाहीये, नाही द्यायचं. Sir, after suspending the license, within how many days the restaurant or any school authority, after how many days they can open it after suspending the license? Unless it is revoked, they cannot operate. How many days it takes? Like It depends on their compliance. in the It depends on their compliance. example of Parsi Dairy. Now you are going to somewhere else. First, let us focus on this. I know where it is coming from. Let us focus on this. Let us not divert the topic. Mr. Murray, how many days are given to the schools to follow these guidelines? Like right from your... We have given days since 2021. Now also like fraudulent food has been given. Like So that's what I said. We will strictly implement henceforward. Already we have told the education department. We have already trained. We have already taken participated in training and workshop of the teachers and the schools. Wherever required, we will do that also. For the first time, we have done this way. No. I'm answering. I'm saying, let me reply. Don't be impatient. Let me reply. So, it is an ongoing process right from the 21. This regulation came into existence, implementation 21. What we are doing this now, we are issuing this separate order right now, compliance order, which are not issued, which is not necessarily that way because those are in existence and implemented. We are telling everybody, every stakeholder, implement it, we will enforce it strictly and we will take action. So, if you want to say, is it being implemented from today? Yes. If you ask me when was it started in 21. So the timeline is already gone. So we are trying to ensure it is there. And the purpose is, the larger objective is healthier student. That is the whole issue. बट तुमचं डिपार्टमेंट जे डिपार्टमेंट आहे जे फूड प्रोव्हाइड करतं शाळांमध्ये We don't provide food. तुमचं
दुसरं डिपार्टमेंट बोलतोय ते प्रोव्हाइड करतं. म्हणजे अशा पण शाळा आहेत ज्या शाळांमध्ये ज्या तुम्ही आता डायटरीच्या गोष्टी दिल्या, व्हेजिटेबल्स हे सगळं आलं पाहिजे, अशा पण शाळा आहेत जिथे फक्त डाळ आणि पाणी मिळतं फ्रॉम द डिपार्टमेंट. तर त्याच्यासोबत फूड डिपार्टमेंट आय थिंक इट्स व्हेरी जनरलाइज स्टेटमेंट. त्याचा मेनू पण ठरलेला आहे. मिड डे स्कूलमध्ये काय द्यायचं, दिवसाचा मेनू सुद्धा ठरलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये ह्या गाईडलाईन बाय अँड लार्ज फॉलो केल्या जातात. ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये काही इश्यू असू शकतील, ते ज्यावेळेस आपण इम्प्लिमेंट करायला जाऊ त्याच वेळेस कळेल ना. सो रादर दॅन लुकिंग ॲट इट की तिथं नाही, असं नाही आहे. कारण याच्यामध्ये ज्यावेळेस मिड डे मील स्कूलमध्ये दिलं जातं, पीएम पोषण आहारमध्ये दिलं जातं, अंगणवाडीत दिलं जातं, ह्या गाईडलाईन त्याच्यामध्ये आहेत. अशा काही वेगळ्या गाईडलाईन नाहीत त्या. डाळ इज अ प्रोटीन, राईट. खिचडीमध्ये त्या गोष्टी असतात. सो इट इज टेकन केअर ऑफ. जिथं होत नसेल त्यांना इम्प्रूव्ह करावं लागेल. जिथं होत नसेल दे हॅव टू इम्प्रूव्ह अँड दे हॅव टू अबाइड बाय. सो इट इज नॉट एज की फक्त अर्बन रुरल असं काही नाही आहे. इट इज फॉर एव्हरी स्कूल. दॅट्स व्हॉट आय से. इट हॅज फॉर एव्हरी स्कूल इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ रुरल, अर्बन, बोर्ड, एडेड, अनएडेड, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, एव्हरी स्कूल इज कवर्ड इन दैट. एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एफडीए एक साथ आके ये कार्रवाई करेगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. सो क्या एक कमेटी फॉर्म होगी, किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि कमिटी ऑलरेडी स्कूल पे लेवल पे है ही है. द इश्यू इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन. मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंड, अगर आप ये बोलोगे कि इश्यू क्लैरिटी ऑफ रोल के हिसाब से नहीं था. एज पर रूल्स है, लेकिन अमंग पीपल, अमंग स्टेक होल्डर देयर वाज नो क्लैरिटी. तो क्लैरिटी हमने लाई है ये ऑर्डर से कि प्राइमरी रोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रेगुलेशन लाइज विद द स्कूल मैनेजमेंट. प्राइमरी रोल. एंड देन अदर स्टेक होल्डर्स कम. स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है, बोर्ड आता है, एफडी आता है, पेरेंट्स आते हैं. सो ऑल दिस अदर स्टेक होल्डर्स सबको करना है, बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद स्कूल मैनेजमेंट. एक साथ दो सवाल जुड़े होंगे. अगर आप आसान तरीके से एक मिनट होल्ड ऑन. अगर आप आसान तरीके से कंज्यूमर्स को समझा दें कि HFSS प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं एग्जांपल्स के साथ. और दूसरा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज FDA को ये कहा है कि हम भारत में रहते हैं, भारत में रियलिस्टिक तरीकों से चीजें की जाएं. Okay. क्या ये पॉसिबल है जो आप अभी नॉर्म्स? ये भारत का ही लॉ है, भारत में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो देयर नथिंग टू लिंक बोथ दिस टू थिंग्स. आसान तरीके से हाई फैट जो प्रोडक्ट है, डीप फ्राइड है, शुगरी है, जहां ज्यादा मैदा होता है, जो जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, ऑल दिस इज नॉट अलाउड विद इन 50 मीटर्स पेरिफेरी ऑफ द स्कूल्स. इट्स एज सिंपल एज दिस. इट्स एज सिंपल एज दिस. थोड़ा सा हिंदी में ना सर, एक याचिका भी दायर की गई है. सर, हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर एक मिनट होल्ड ऑन. लेट हिम कंप्लीट. As far as implementation part is concerned, it could be easier in urban Maharashtra due to awareness, or there are your teams. But there are tens of thousands of schools in rural Maharashtra where such kind of things are happening. How do you plan to spread awareness and implement these things in those? I don't think that's really a challenge. I really don't think that's a really challenge. Because midday meal school has been for years together. PM Poshan Ahar is also for years together. And by and large, those guidelines are followed in that. So it is not, rather you would, rather it goes other way around. Trans fatty food is much more available in urban settings than in rural settings. It goes other way around. So it's not as if it is very difficult in urban rural. It has challenges both in urban के अलग है, rural के अलग है. So we cannot say that it is challenging in one, easier in other. Different kind of challenges would be there. But then, even if challenge is there, there is an opportunity for us, and we need to do that in the larger interest of the health of the children. That's why this law is passed. And the law is passed, regulations are made by due process, consultation and scientific evidence. So it's not something that aaj hua hai. There has been a process for it. And the government came to conclusion, and that's why these regulations were made. And that's why we need to implement it. You were saying something. सर, मेरा सवाल ये था कि हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई. पहले ये खत्म कर दो, उसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे कि लेटेस्ट. एक मिनट होल्ड ऑन. मराठीचा प्रश्न आपण म्हणलेला आहे, तर आपण हिंदीमध्ये एक छोटा येस, हिंदी मध्ये बोला ना मैंने. ओके. की पॉइंट मराठीचा प्रश्न घेऊया ना. आणि आता हे तुझ्या प्रश्नाचं सांग. एक लास्ट. हाँ नाही ऐका सर माझा एक प्रश्न आहे. नहीं, अभी उनको हो. याचा प्रश्न होऊ दे. हाँ साहेब या
पत्रकार परिषद तुम्ही घेतली त्या व्यतिरिक्त प्रश्न आहे माझा. दोन प्रश्न. नाही ते हे झाल्यानंतर, हे स्कूलचं झाल्यानंतर मग याच्या व्यतिरिक्त जे आहे ते सर मला स्कूलच्या संबंधी असेल आता. या संदर्भात 50 मीटर अंतरामधले जे तुम्ही सांगितलेलं आहे त्यामधले शॉप ओनर्स जे आहेत ते कशावरून ऐकतील की त्या शाळांचं दे विल बी ऍक्टेड अगेन्स्ट, हं? त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होईल. कशाविरुद्ध ऐकतील म्हणजे काय? कारवाई कोण करणार? आमचे जर फूडचे असेल तर आम्ही करू. फूडच्या बाबतीत आमचा संबंध येतो. शाळाने तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा कसं करायचं? हो ते आम्हाला शाळेने कळवावं लागेल ना की ते ऐकत नाहीत. दॅट्स व्हॉट देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज. इफ दे डू नॉट फॉलो समबडी दे हॅव टू इंटिमेट आवर ऑफिस. सर तुम्ही म्हणाला की 2020चा नियम आहे. 20चा नियम आहे, 21 पासून लागू चालू आहे. इतक्या वर्षामध्ये 5 वर्षामध्ये का कारवाई झाली? झाल्यात ना कारवाई, कोणी सांगितलं नाही झाल्या. आम्ही स्ट्रिक्ट करतोय. तुम्ही माझे शब्दप्रयोग गोष्ट ऐकले नाही. कारवाई चालूच आहे. आम्ही स्ट्रिक्ट जास्त Are करतो. you saying that guidelines were not followed from 2000? नो, आय नेव्हर सेड दॅट. आय नेव्हर सेड दॅट. I say that it is being implemented. We need to be much more compliant and much more stricter in enforcement. That's what I am saying. So आज FDA ने 27 तारीख को स्कूल चिल्ड्रन को जो रेगुलेशंस है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के फूड के बारे में, सेफ फूड एंड बैलेंस डाइट फॉर द स्कूल चिल्ड्रन 2020 जो रेगुलेशन है ये इम्प्लीमेंट करने की एक कंप्लायंस ऑर्डर इश्यू की है, जारी की है. उसके तहत जो बैलेंस डाइट स्कूल में देना है उसके गाइडलाइंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, FDA, पेरेंट्स, स्कूल बोर्ड्स एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का डिफाइन किया गया है. इस ऑर्डर के तहत जो 2020 के रेगुलेशंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली होगा, जिसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी स्कूल मैनेजमेंट की रहेगी, जो गाइडलाइन इंप्लीमेंट करे विद इन द प्रीमाइसेस एंड विद इन 50 मीटर्स ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द स्कूल. जहां की जो ट्रांस फैटी फूड FTSS जिसको बोलते हैं वो बैंड है, इट इज प्रोहिबिटेड, वो अलाउ नहीं होगा. उनका जो वेंडर होगा FBO वो लाइसेंसी होना चाहिए, वहां पे बोर्ड होना चाहिए, वहां फूड सुपरवाइजर होना चाहिए, एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट करना चाहिए या नोडल ऑफिसर जिसकी वजह से वो गाइड कर सके. इसमें सबसे अहम भूमिका स्कूल मैनेजमेंट की रहेगी, प्रिंसिपल की रहेगी, ये इम्प्लीमेंट करना उनका दायित्व है. अगर उसमें कोई बाधा आती है इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, इन्फोर्समेंट के बारे में, दे उन्हें हमें FDA के ऑफिसर को, लोकल ऑफिसर को इंटीमेट करेंगे और उस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करेंगे. हर साल में कम से कम 2 बार स्कूल का FDA की तरफ से 2 बार इंस्पेक्शन हो मिनिमम, वहां का सैंपल भी लिया जाएगा और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी. जो FBO या स्कूल ये कंप्लाई नहीं करते उनके ऊपर जो हमारे रेगुलेशंस के विशेष से कार्रवाई की जाएगी. बोर्ड जिससे वो स्कूल एफिलिएटेड है वो हिसाब से उनकी तरफ कार्रवाई करेंगे और स्कूल डिपार्टमेंट भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे बच्चे हैं वो बैलेंस डाइट खाए, उसमें उनका प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, वो कॉम्बिनेशन रहेगा, होलसम फूड रहेगा, जिसकी वजह से उनका फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बेटर हो सकती है. और हमारे नए जो जनरेशन है उनका एक कल्चर बनेगा कि जिस हिसाब से एक बैलेंस डाइट वो कंज्यूम करे और उसका इम्पैक्ट उनके हेल्थ पे, बोथ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, इस पे होगा, वो पॉजिटिव होगा. इस ऑर्डर में किसका क्या रोल है क्लियरली डिफाइन किया गया है. इसका स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन होगा. ये करते समय लास्ट 1.5-2 महीने में महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जिसको हम डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी बोलते हैं, उन्होंने स्कूल्स और टीचर्स की ट्रेनिंग भी ली है. जो टीचर्स की ट्रेनिंग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से होती है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग में हमारे ऑफिसर जाके वहां गाइडेंस किए हैं. आगे भी जहां जहां जरूरत होगी वहां पे हम करेंगे. तो इसका ऑब्जेक्टिव और स्टेक होल्डर जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर स्कूल्स, चिल्ड्रन, पेरेंट है. इनको ये समझना है कि हम हमारे बच्चों को एक अच्छा बैलेंस डाइट कल्चर डेवलप करना है और उसका इम्पैक्ट उनके लाइफ पे होना है. तो इसकी वजह से हम सेफ फूड, सेफ ह्यूमंस और सेफ चिल्ड्रन अचीव कर पाएंगे और उनका ग्रोथ अच्छी तरह से होगा. उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट फैमिली एज ए होल, सोसाइटी एज ए होल इस पे होगा. ये इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ है और मुझे अपेक्षा है
ये सब स्कूल, सब पेरेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग 1,08,000 स्कूल है, 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे इसमें पढ़ते हैं। अगर वहां तक हम पहुंच सकते हैं तो महाराष्ट्र में एक हेल्दी स्टेट, ईट राइट कैंपेन, ईट राइट स्कूल जो है वो अचीव करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सर वो फूड क्या क्या रहेंगे वो थोड़ा सा अभी बता दिया ना, कितने बार बता, अब हिंदी बात किया। एग्जाम्पल जैसे कि बड़ा पाव हो गया, सर एक सवाल ये है कि जो- पहले से इम्प्लीमेंटेशन शांति शांति, थोड़ी शांति रखती है। इतना गड़बड़ करोगे तो कैसे होगा। सर पूछ रहे हैं सर, आप फटाफट हाई फैट, सैचुरेटेड और शुगर जो प्रोडक्ट है, जैसे कि डीप फ्राइड जो भी रहते हैं वो प्रिवेंटेड है। हाई शुगर वाले प्रिवेंटेड है। सो कॉल्ड जो ड्रिंक्स रहते हैं, जो कैफिनेटेड, नॉन कैफिनेटेड, उसमें हाई शुगर रहता है, कैफीन रहता है, वो प्रिवेंटेड है विद इन द 50 मीटर्स पेरीफेरी। तो वो जो आपको जंक फूड लगता है बाय एंड लार्ज, उसका हम जनरल कैटेगरी करते हैं, वो यहाँ पे प्रिवेंटेड है। सर पेरेंट्स को कैसे कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया था कि प्रिंसिपल्स जो है वो पूरी जिम्मेदारी लेंगे, जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी, लेकिन जो प्रीमाइसेस है वहाँ पे जिम्मेदारी किसकी होगी और क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ आप काम करेंगे? यस, एग्जैक्टली। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एफडीए, ये दोनों मिला के काम करना है। वहाँ लोकल स्कूल तो करेगी, उसके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट और एफडीए का रोल ज्यादा आता है। अगर 50 मीटर प्रीमाइसेस में कोई इसका वायलेशन कर रहा है तो स्कूल ने उनको वार्निंग देके बंद करना है। अगर नहीं होता है तो वो हमारे ऑफिसर को कांटेक्ट करे, हम वहाँ इन्फोर्स करके वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर मुंबई जैसे शहर में जहां एक स्कूल के ठीक बाहर निकलते ही कई ऐसी दुकानें होती हैं, उन पर कार्रवाई कैसे होगी? उसमें ये प्रोडक्ट वो बेच नहीं सकते। वो दुकान चला रहा है तो ये जो एचएफएसएस प्रोडक्ट है वो वहाँ बेच नहीं सकते। सर पेरेंट्स को कैसे एजुकेट करेंगे जो बच्चों को अपने ब्रीफिंग में आपके थ्रू जो ब्रीफिंग किया है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तो पहुंचे, उनसे होंगे, उनको क्वेश्चन है तो वहाँ स्कूल में जाए, मेरे ऑफिसर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट को पता नहीं है, कम ज्यादा पता हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज सबको पता है। बस ये इम्प्लीमेंटेशन का कंप्लायंस का इश्यू है, इस हिसाब से इस पे ध्यान दे रहे हैं। सर बच्चे जो अपने बर्थडे में मेलोडी बहुत अभी नहीं बोला, बार कितनी बार पूछूं। सर ये जो कानून है हाँ। 2020 और 21 का ऑलरेडी स्कूलों में इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन अभी आप इसको लेकर काफी ज्यादा सख्त कर रहे हैं। इसके पीछे क्या जो टीचर्स हैं उनको तो आप गाइड कर रहे हैं, क्या उसके बाद भी ये सारी चीजें स्कूल में फॉलो होंगी? क्योंकि इसके बिल्कुल पहले तो बिल्कुल बार-बार आप किए हैं। बिल्कुल होंगी, ये सबके इंटरेस्ट में है और ये करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज the careers and lives of the future generations. We cannot compromise. It is high time that we really adopt these standards and implement it for the betterment of children and our own society. I think बस नॉट अलाउड. आम्ही कारवाई करणार. एचएफएसएस कुणी तिथं सेल करत असेल तर आम्ही कारवाई करणार. हो गया हाँ अभी उनको हाँ संबंधित माझा प्रश्न नाहीये. बोला दोन प्रश्न आहे. बोला. म्हणजे मागच्या काळामध्ये ज्या पत्रकार परिषदा झाल्या त्या डेअरी विषयी फार कारवाई करताना तुमचा विभाग दिसत होता. पहिला प्रश्न असा आहे, गोवर्धन आणि सोने डेअरीच्या संदर्भात तपासणी झाली होती, कारवाई झाली होती, नेमकं त्यातून सत्य काय समोर आलंय आणि वर्धा मॅटरमध्ये नेमकं काय प्रकार आहे? गोवर्धन आणि दुसरी कोणती सोने याच्यामधलं इन्व्हेस्टिगेशन अजूनही चालू आहे. त्याच्यामध्ये जे अडल्चरेशन केलेलं मिल्क आहे त्याच्या लिंकेजेस आम्हाला त्या डेअरीपर्यंत सापडलेल्या होत्या. त्याच्यामध्ये काही त्या इस्टॅब्लिश झालेल्या आहेत. त्याच्यामधलं डॉक्युमेंटेशन आम्ही व्हेरिफिकेशन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये काही फाइंडिंग आलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर त्याच्यामधून दुसऱ्या कुणाकडून दूध येतं तिथपर्यंत आम्ही पोहोचलेलो आहोत. त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन अजून कंप्लीट व्हायचं आहे दोन्ही याच्यामध्ये. सबस्टँडर्ड मिल्क ते घेत होते हे त्याच्यातून सिद्ध झालेलं आहे. त्याच्यानुसार त्यांना त्याप्रमाणे नोटीस दिलेली आहे. त्याचबरोबर जे आम्ही ज्यांच्यावरती एफआयआर केले होते आणि ज्याच्यामध्ये 26 लोक त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होते त्याचे प्रॉडक्ट त्याच्यापर्यंत रीच झालेले ते पण त्याच्यात सिद्ध झालेलं आहे. पूर्ण कारवाई झाल्यानंतर त्याचा डिटेल रिपोर्ट प्रेसच्या माध्यमातून मी स्वतः देईन. गोरस भांडारच्या बाबतीत जी कारवाई झाली होती ती कोर्टाने एवढं म्हटलं होतं की याच्या अगोदर 4 वेळेस ऑलरेडी 2020 ते 2025 दरम्यान 4 वेळेस त्याचं इन्स्पेक्शन झालं होतं. त्याच्यामधले कंप्लायन्सेस झालेले नव्हते
हायकोर्टाचं एवढं म्हणणं होतं की त्यावेळेस त्यांना इम्प्रुव्हमेंट नोटीस दिलेली नव्हती, म्हणून आता कारवाई करताना तुम्ही इम्प्रुव्हमेंट देऊन नोटीस पुढची कारवाई करा. त्या अनुषंगाने आम्ही इम्प्रुव्हमेंट देऊन पुढची कारवाई करत आहोत. एक मिनिट, सॉरी. असं म्हटलेलं आहे की एफडीएनं मंत्र्यांच्या आस्थापनांची तपासणी केलेली आहे का, हायकोर्टाचं कॅन्टीन चेक केलेलं आहे का, तसंच पुढच्या 2 दिवसांमध्ये सर्व तपासणी करून अहवाल सादर करायचा शुक्रवारी. ते ऑर्डर माझ्यापर्यंत आलेले नाहीत. मला हायकोर्टाने काय म्हटलेलं माहीत नाही. मंत्र्यांची आस्थापना मला कळलं नाही. त्यांच्या संबंधित रेस्टॉरंट्स वगैरे सगळेच होतात आपल्याकडे. असं कोणतं एक होतं आणि दुसरं होतं असं नाही. आपल्याकडे सगळ्या प्रकारच्या ज्या आस्थापना आहेत त्याच्यावरती कारवाई आपण करतो, तपासणी करतो. जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, आपण बऱ्याच वेळेस हायलाईट काय करतो की लायसन्स सस्पेंड झालेलं. आम्ही इम्प्रुव्हमेंट नोटीस दिलेल्या आहेत, त्या पण आम्ही प्रेसला देतो, त्याच्या जास्त हायलाईट होत नाही. आपल्याला फक्त सस्पेन्शन लायसन्स काही दिसतात. मी जवळजवळ महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 2 महिन्यामध्ये हॉटेलच्या आणि रेस्टॉरंटच्या बाबतीत अराउंड 600+ इन्स्पेक्शन झालेले आहेत, व्हिजिट झालेले आहेत, मोर दॅन 600. लायसन्स सस्पेंड केली झालेत अराउंड 60च्या आसपास. इम्प्रुव्हमेंट नोटीस जवळजवळ 125-200च्या आसपास यांना गेलेल्या आहेत. फक्त सस्पेन्शनची कारवाई होती हे जे म्हटलं जातं ते चुकीचं आहे. मी प्रेसमध्ये क्लिअरली देत असतो ते. आता आपण हायलाईट कशाला करता हा आपला भाग होतो, त्याच्यामुळे मी काही कमेंट करणार नाही. फक्त रेस्टॉरंट इथले होतात का नाही, अक्रॉस महाराष्ट्र होतात. नागपूरपासून, सोलापूरपासून, पुण्यापासून, बीडपासून सगळ्या ठिकाणी झालेले आहेत. राईट. नंबर 2 जो विचारला की वेगवेगळ्या ठिकाणी झाल्या का, वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या आहेत. इव्हन मंत्रालयाची कॅन्टीन सुद्धा तपासलेली आहे. त्याच्यामुळं यालाच होते त्यालाच होते. क्लबवरतीही आपण केलेलं आहे, वडापाव सेंटरवरतीही आपण केलेलं आहे, स्वीट्सवरती पण केलेलं आहे, ग्रोसरीवरती पण आपण तपासण्या करतो, प्रोहिबिटेड आयटमवरतीही कारवाई करतो. सो जे मॅन्डेट आहे त्यानुसारच आपण कारवाई करतो. डिस्क्रिमिनेशन, सिलेक्शन, पिक अँड चूज असा प्रकार आपल्याकडे होत नाही आणि त्याचप्रमाणे आपण कारवाई करत राहणार आहोत. सर एक सवाल है, कल सीसीआई, वेलिंगटन, एमआईजी ऐसे कई बड़े क्लब पर आपकी टीम गई थी, क्या कार्रवाई हुई है और क्या कुछ वहाँ कमी? तो कल प्रेस नोट दी ना डिटेल में. क्लब से बोला जा रहा है कि एक कॉकरोच दिखा तो उसका फोटो निकाल के फिर लाइसेंस सस्पेंशन, इस तरह की कार्रवाई. थोड़ी सी डिटेल. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. आपको प्रेस डिटेल में दिया है, उसमें से फोटो वीडियो सब हमने दिए हैं. अगर किसी को लगता है कि ऐसा कर रहे हैं तो उसके फोटो देके, वीडियो देके, उसमें क्लियर है. वो कोई आर्टिफिशियल नहीं है, वो टाइम स्टैम्प्ड है, जियो टैग स्टैम्प्ड है, दूसरे कहीं के ये नहीं है. आपको आपने जो बताया, पूछा कि ऑलमोस्ट कल 7 क्लब के इंस्पेक्शन हुए, उसमें से 5 क्लब पे सस्पेंशन हुआ. उसमें से सीसीआई एक है, दूसरा आरके जीव जिमखाना है, तीसरा अपर्णा जीव जिमखाना है, 14 एमआईजी क्रिकेट क्लब बांद्रा ईस्ट है और 5वां विलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब है. यहाँ पे उनका सस्पेंशन हुआ. उसके अलग अलग रीजन है. बेसिकली जो रीजंस है तो शेड्यूल 4 का वायलेशन बेसिक बहुत बड़े पैमाने में पाया गया. जब सस्पेंशन करते हैं, फोर्थ सस्पेंशन, उसके कुछ रीजन होते हैं. वो दायरे में आते तभी उनके ऊपर कार्रवाई होती है सस्पेंशन की. जहाँ दायरे में नहीं आता वहाँ इम्प्रूवमेंट नोटिस जाती है, कहीं पे स्टॉप बिजनेस दिया जाता है. अगर कुछ नहीं है तो उनको वार्निंग देके कुछ नहीं बोल के उनका चल रहा है तो उनको ठीक किया जाता है. तो ये मानना कि सेलेक्टिव किया जा रहा है छोटे छोटे चीजें के लिए, क्या रोडेंट्स आर नॉट अलाउड. आपको अगर वीडियो है आपके पास, कल हमने भी देखा है, उसमें दिखाया जाता है, आपको दिखा जाएगा कि क्या क्या पाया गया है, क्या क्या नहीं पाया गया है. हर एक का डिटेल आपको चाहिए. क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया का वेज नॉन वेज सेग्रीगेट नहीं था. जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, वेज और नॉन वेज का जो प्रिपरेशन अलग होना चाहिए, स्टोरेज अलग नहीं था. अब इसको माइनर मानोगे? नॉट अलाउड. दूसरा, जो वेस्टेज मैनेजमेंट है वो ठीक तरह से नहीं था, एज पर नॉर्म नहीं था. कॉकरोच मिले. जो कोल्ड स्टोरेज है वहां पर वाटर और वो स्टोर हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर मिला है. यहाँ स्केलेटन्स ऑफ कॉकरोचेस भी मिले हैं. कॉकरोच मिले, स्केलेटन्स ऑफ कॉकरोचेस भी मिले हैं. देन जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है उस पर नॉर्मल ब्रूम भी यूज किया है. उसके बाद जो बुरशी भाज्या ज्या आहेत, सब्जी, वो भी मिला है. मशरूम, एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स, ये सब वहां मिले. अब इसको आप माइनर कैसे मानोगे, मुझे समझ में नहीं आता. ये तो स्टैंडर्ड है, डिसाइडेड है, रेगुलेटेड है. ये यहाँ की बात की. आपको दूसरे इसके क्लब की बात कर रहा हूं, वहां पे आपको ये मिलेगा
जो किचन है, जो नाम है, उस हिसाब से नहीं है। सर क्लब के नाम के साथ बताइए तो थोड़ा सा। अरे आपके पास कर ही दिया है ना। नहीं सर, आप तो ये जो मैं RK जूही की बात कर रहा हूँ, जो किचन है, जो स्टैंडर्ड टाइल्स है वो नहीं है, इंडिविजुअल क्लीनलीनेस ऑफ फूड हैंडलर्स है वो नहीं है, जो रॉ मटेरियल या रिसीट मटेरियल आता है उसका क्लीनिंग नहीं किया जाता था, जो ऑयल है उसका रिकॉर्ड नहीं है, कितनी बार यूज किया है उसका रिकॉर्ड नहीं है, जो ऑयल्स है वो नॉट क्लीनेबल, वहां से कुछ गिर रहा है वो वहां पे मिला है, टेम्परेचर मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो रहा है, टाइम टेबल वहां पे नहीं दिखा है, ड्रेनेज वहां का है वो ठीक नहीं है। यहाँ की बातें बताओ। अपर्णा जो ये देखा, ऑल मेरे इक्विपमेंट जो यूटेंसिल्स है उसको गंज आई हुई है, डोर से ऑल कॉकरोचेस वगैरह अंदर आ रहे हैं वो पैक नहीं था, इंडिविजुअल क्लीनलीनेस के लिए वहां फैसिलिटी है ही नहीं है, पैकेजिंग जो फूड यूज कर रहे हैं उसको फूड ग्रेड मटेरियल नहीं यूज किया जा रहा है, जो फूड है उसमें शिजवलेले न शिजवलेले में जला कुक्ड, अनकुक्ड, वेजिटेबल, नॉन वेजिटेबल, इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, फ्लाइज का इन्फेस्टेशन काफी ज्यादा है, सो ऑडिट नहीं है, ये इसके बारे में बता सकता हूँ। MIG क्लब अगर आप देखा जाए तो अनऑथराइज थर्ड पार्टी वहां पे प्रोवाइडर है, कोई नेबुला केटरिंग सर्विसेज बोल की एक संस्था है, उसका लाइसेंस ही नहीं है, उससे वो केटरिंग करवा रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन तो है ही, लॉट ऑफ इन्फेस्टेशन इज देयर, लाइव कॉकरोचेस वेर फाउंड, नेट्स मिले हैं वहां पे, जो कॉकरोचेस उसके नेट है वो मिले हैं, रॉ फूड, कुक्ड फूड, फिश, नॉन फूड, ऐसा क्लासिफिकेशन जो चाहिए उसके बोर्ड चाहिए वहां नहीं मिले हैं, क्रॉस कंटेमिनेशन फूड का मिला है, वाटर एंड फूड का जो टेस्टिंग है उसका अकाउंटिंग नहीं है, उसका रिकॉर्ड नहीं है, स्ट्रक्चरल चेंजेस जिस हिसाब से स्ट्रक्चर होना चाहिए वह किचन का वो नहीं है, फसाई ट्रेन मैन पावर वहां पे नहीं है, ट्रेन टेक्निकल मैन पावर नहीं है। वेलिंगटन में देखा जाए वो जो डोर्स है और किचन है, अब्जॉर्बेंट नॉन अब्जॉर्बेंट वैसे नहीं है, इन्फेस्टेशन है, जो टेम्परेचर मैनेजमेंट का रिपोर्ट रहता है वो नहीं है, स्लीपरी फ्लोर मिलेंगे आपको वहां पे, फूड और वाटर का जो रिपोर्ट है वो नहीं है, अपडेटेड नहीं है, पैकेजिंग फूड जो करते हैं उसका फूड ग्रेड मटेरियल नहीं है। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो जो मेरे ऑर्डर है उसमें सब कुछ लिखा है, उनको जो ऑर्डर दिए सस्पेंशन ने मेरे ऑफिसर ने उसमें एवरीथिंग इज रिटन। सो तो उनको सस्पेंड नहीं किया है, उनको जो है फूड स्टॉप बिजनेस लिखा है, तो उनका इससे कम है, इसलिए जिस हिसाब से वायलेशन है उस हिसाब से एक्शन लिया जाता है। एक मिनट हाँ। MIG क्रिकेट क्लब का जो आप बता रहे हैं, यू हैव काउंटेड लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन MIG क्रिकेट क्लब, बट व्हेन आई हैड अ वर्ड विद MIG क्रिकेट क्लब, वो बोल रहे हैं 2 दिन में हमारा सब ठीक हो जाएगा। ऑल दिस थिंग्स विल बी क्लियर्ड इन 2 days। अरे भाई आप उनको अगर उनको कंप्लीट करके वो कंप्लायंस दे दे, फिर हम देखेंगे ना, वो 2 दिन लगता है 4 दिन लगता है, मैं कैसे बोलूँ, वो बोल पाएंगे। मतलब उनका फ्रॉम योर साइड इट वुड हैव बीन लाइक आप 2-3 दिन में करते। सो उनका दैट डिपेंड्स ऑन देम, वो 1 दिन में करते, 2 दिन में करते, 4 दिन करते, वो करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फिर हम इंस्पेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हियरिंग लेके डिसीजन देंगे। सो प्रोसीजर का पार्ट है। तो वो 2 दिन में करते हैं, 4 दिन का, वो सवाल मुझे क्यों कर रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आफ्टर 2 days योर सस्पेंशन जो है वो नो ऐसा नहीं होता है ना, वो कंप्लाई करने के बाद दे सबमिट अ रिपोर्ट, वंस दे सबमिट अ रिपोर्ट माय ऑफिसर गोज एंड रीवेरीफाइज इट, उनका रिपोर्ट मेरे पास आता है और उनको सस्पेंशन का अपील करना पड़ता है, उनका अपील मेरे ऑफिसर का रीवेरिफिकेशन रिपोर्ट बोल के मैं हियरिंग लेता हूँ, उस पर डिसीजन हो जाता है। नो इट डजंट टेक टाइम, दैट डिपेंड्स ऑन देम कंप्लायंस पे, उनका कंप्लायंस और अपील वो प्रोसीजर फॉलो करें, हम हमारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सर एक रिपोर्ट आहे, एक रिपोर्ट आहे, ड्रग इन्स्पेक्टरचा जो फायनल स्टेज आहे त्याच्यावर ॲलिगेशन आहे की तो पेपर लीक झालाय आणि that you should ask this question to MPSC. MPSC conducts exam. MPSC conducts exam. I don't conduct exam. It's a constitutional and autonomous body. सर मला कंप्लीट करू
हा. मी हे बोलतोय की फूड ड्रग्स इन्स्पेक्टरची जी एक्झाम होती, फायनल एक्झाम, त्याच्यामध्ये ॲलिगेशन पेपर लीकचं आहे आणि FDA ला त्याबद्दल काही मेल आला होता का? आणि FDA ला मेल जर आला असेल तर त्याच्यावर FDA ने काही ऍक्शन घेतली आहे का? रोहित पवार पण तुम्हाला भेटायला आले. 21 तारखेला मला एका व्यक्तीकडून मेल आला होता आमच्या ऑफिसला. 21 तारखेला, 21 जुलैला. ज्या दिवशी मेल आला त्याच दिवशी आम्ही त्यांना पत्राने कळवलं की प्लीज कम टू द ऑफिस ऑन 24th. म्हणून ते 24 तारखेला आमच्याकडे आले. 24 तारखेला आल्यानंतर आमच्या ऑफिसने त्यांचं स्टेटमेंट घेतलं. त्यांच्याकडे जे काही पुरावे त्यांना म्हणायचे होते ते आम्ही घेतले, इन्क्लुडिंग स्क्रीनशॉट ऑफ द मोबाईल ज्यांना काय घ्यायच्या त्या घेतल्या. आणि हे सर्व रेकॉर्ड आम्ही घेऊन आम्ही ते एमपीसीला पाठवलं त्याच दिवशी. आणि एमपीसीला सांगितलं की ही कंप्लेन आहे, यांच्याकडचे हे एव्हिडन्सेस आहे, यांचं हे स्टेटमेंट आहे, ह्याच्यावरती आपल्याला पुढची कारवाई तुमच्या लेवलला व्हेरीफाय करा, पुढची कारवाई करा. दिस इज व्हॉट हॅज हॅपन. सर ये हिंदी में भी एक बार प्लीज. अरे यार बहुत हो गया ना. नहीं मैं नहीं दूंगा. एमपीएससी छोटा सा सर. नहीं, हो गया. आई थिंक आपके सवाल खत्म हो गए हैं. अब इतना आपको तो पता है, इसका मीनिंग पता है, सब कुछ पता है. I'll speak in English about MPSC, the question which was asked. अरे असं करू नका ना, व्यवस्थित करा ते. The question which I have raised about the recruitment of drug inspectors by MPSC. MPSC is a constitutional and autonomous body. It conducts exam. It has its own way of doing it. This question should be asked to MPSC. However, as you have asked the question, there was a mail which was received by the office on 21st of July regarding that there is some issue about drug inspector examination. On 21st of July, when we received the mail, we wrote a letter to the concerned person to remain present along with the evidences on 24th of July. On 24th of July, the concerned person came. We recorded the statement of the concerned person, applicant, along with the evidences which he had, along with the screenshot, whatever he had. All this was sent to MPSC for their further necessary action. We have given that record, given that letter to the MPSC, and MPSC is taking further action. Followed by that, there was some representation. Same representation again we have sent to the MPSC, because MPSC is a exam conducting body, is an autonomous body, is a statutory constitutional body. It will take a call on it. It will investigate and take further actions on that. Sir, in case of She has a Purnima, question. sir, Her question रह गया सब. Guys, let her Purnima's ask. owner of the establishment has gone to the Sorry? Purnima's owner of the establishment has gone to the High Court against FDA, claiming that the action was on false grounds. कि ये fungal growth वगैरह claim करता है. Stuff like banana naturally becomes black over the period of few days, and when we offered raw material to FDA, they refused to check that material. So that is the ground they are claiming against you in that. So whatever they have gone, we'll respond.